Hello everybody, how are you all? I'm Dr. Neha welcoming you for the very first time to the HPSC playlist that I'm going to inaugurate today on the text that have been prescribed in the recently launched HPSC syllabus for the screening and subjective exam. So without much ado, we will start with the final solutions by Mahesh Dattani. I will try to be as precise and as informative as possible, so to let you know the major pointers of the text and the things you must know when you are going to sit in the exam. Because the plays have already been prescribed, it becomes very much easy for us to pick up a play, complete it, and the unit becomes complete. So let us start with Mahesh Dattani's Final Solution. The play Final Solution is published in the year 1993 based upon just after the Babri Masjid riots and demolition of the year 1992. The play has three acts and the background of the play is partition. Mahesh Dattani is a Sahitya Academy Award winner. He has also authored many other works like Tara, like Dance Like a Man, and Final Solution is one of his most famous plays prescribed in many of the universities in Haryana also. बहुत सी universities में इसे prescribe किया गया है. बहुत ही amazing play है, partition के ऊपर based है. Even after 75 years of आजादी हम इस partition को let go नहीं कर पाए हैं. तो जब ये प्ले लिखा गया है इन द ईयर 1993, द राइट्स, द पार्टीशन, द फीलिंग, द मेंटल ट्रॉमा, अब तक ग्रीन ही थे वो वुंड्स. तो उन सबको टेकअप करते हुए महेश दत्तानी ने ये प्ले लिखा है फाइनल सॉल्यूशन. इवन आफ्टर 75 years वी आर नॉट एबल टू गिव दिस पार्टीशन अ फाइनल सॉल्यूशन. वी स्टिल हार्बर द हेट्रेड, वी स्टिल हार्बर सम सॉर्ट ऑफ अदरनेस टुवर्ड्स दैट कंट्री. तो जो वो कंट्री हमारी ही थी, हम उनके ही थे, तो वो अदरनेस आज तक नहीं गई है. तो महेश दत्तानी का प्ले बहुत ही ज्यादा एप्ट हो जाता है. तो जब ये प्ले ओपन होता है तो उस प्ले की ओपनिंग डेट को भी आप मार्क कर लीजिए. द प्ले ओपन्स अप विद द मेजर कैरेक्टर दक्षा हु इज गोइंग टू स्टार्ट हर डायरी राइटिंग. और वो डेट क्या है? 31 मार्च 1948. इस कंप्लीट प्ले में द प्ले राइट, द मेजर कैरेक्टर दक्षा keeps on rotating from past to present, present to past. कि हम एक बार ईयर 1948 में हैं और एक बार हम 40 इयर्स आगे जाते हैं, तो भी कैरेक्टर्स का माइंडसेट वही है. पार्टीशन चेंज नहीं हुआ है. उनका माइंडसेट, उनका ऑरा, उनका बिलीफ सिस्टम, फेथ, सब उसी तरह रिजिड ही है. नो मैटर हाउ मच वी ट्राई टू अकोमोडेट, कोलैबोरेट और एक्यूमुलेट, हम फिर भी एक अदरनेस की फीलिंग को गिव अप नहीं कर पाए हैं. सो लेट अस गेट इनटू द मेजर कैरेक्टर लिस्ट. The major characters of Mahesh Dattani's Final Solution is Daksha and Hardika. Ramnik is the son of Daksha. Daksha is in her teens. She is 15 years old. She has got married, and after her marriage, she got the name Hardika. So to look similar to her husband's name Hari. So her son is Ramnik, her daughter-in-law is Aruna, and her granddaughter is Smita. And these are the two boys. These are the two Muslim boys. And in the play throughout we have seen chorus. Chorus यहाँ पर दो तरीके के रोल प्ले करता है. कभी वो मुस्लिम कम्युनिटी का मास्क आगे कर लेते हैं. These are 5 people. They become mob to the play. Riots हो रहे हैं, violence हो रही है. These are Muslim men. Sometimes they bring ahead the Muslim mask and then they bring ahead the Hindu mask. So these are 5 people. In chorus they have 5 people. They have 10 sticks, 10 mask stick, जो 5 मुस्लिम की है, 5 हिंदू की है. So let us get into the brief summary now. The play opens up with Daksha or Hardika, who on the 31st March 1948, she is starting to write her diary because presumably she has no friend, nobody to listen to her innermost feeling. She is in a need of a friend. That is why she is instilling her pages of the diary, and through her diary we get to know
that Daksha is 15 years old and she lives with her in-laws and she seeks a friend and she is married to Hari, and how how the communal rights are going on, and how when she was child she lost her father, how she lost her father in the riots that were going on because of this partition. तो partition पूरा का पूरा play इस इनके household गांधी household में take up करता है, रमनिक गांधी के हाउस होल्ड में टेकअप करता है, इनके घर में टेकअप करता है। पूरी सेटिंग इनके घर की है, इनके किचन की है, इनकी पूजा रूम की है, क्योंकि किचन और पूजा रूम ऐसे ही प्लेसेस होते हैं जहां पर हम अपनी फेथ को सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। कुछ यूटेंसिल्स को हम सेक्रेड मानते हैं, कुछ यूटेंसिल्स को हम रूटीन के लिए मानते हैं, कुछ पूजा रूम के जो हमारे आइडल्स होते हैं वो हमारी फेथ का कल्मिनेशन होता है। तो दक्षा जो है वो डायरी लिख रही है। थ्रू आउट द प्ले शी कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। कभी वो दक्षा बन जाती है, कभी वो आज की एक मिड 60s की लेडी हार्दिका बन जाती है जो अपने बेटे और पोती के साथ रहती है। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट इफ यू गो टू द लेयर्स यू विल गेट टू नो द मेंटल ट्रॉमा दैट इज स्टिल देयर। सो कैरेक्टर्स यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। दक्षा का घर है, रमनिक, अरुणा, स्मिता। अब की 40 इयर्स 1948 से हम प्लस 40 इयर्स पर आ चुके हैं। ये प्रेजेंट डे है जहां से ये प्ले स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 60 इयर्स की है और यहाँ पर इनका जो बेटा है रमनिक गांधी, ये एक शॉप पर वर्क करता है, अपनी शॉप है इनकी। और उसके बाद अरुणा उनकी डॉटर इन लॉ है जो कि मिड 40s में है, अपनी मिड 40s में, और अपने फेथ को लेकर बहुत ज्यादा डिलिजेंट है। सो स्मिता है जो कि एक यंग कॉलेज गोइंग गर्ल है, बहुत फ्री है, बहुत आइडियलिस्टिक नहीं है, बट सुकून से जिंदगी जीना चाहती है। अब होता क्या है, वन फाइन डे द राइट्स आर द प्ले ओपन्स अप इन द मिडल ऑफ अ राइट वेयर इन ड्यूरिंग अ रथ यात्रा दैट वाज गोइंग ऑन। हिंदू रिलीजन की रथ यात्रा जा रही थी, किसी मॉब ने, मुस्लिम मॉब ने अटैक किया, और उस अटैक का रिजल्ट क्या होता है? उस अटैक का रिजल्ट होता है द पुजारी इज किल्ड एंड वो रथ पूरा का पूरा गिर जाता है, जिसकी वजह से हिंदू आइडल्स भी गिर जाते हैं। दैट वाज द सॉर्ट ऑफ राइट राउजर। ये वर्ड मैंने टेक्स्ट में से ही लिया है, सॉरी, दिस इज राइट राउजर। तो ये दोनों इनके घर में उस कर्फ्यू से बचते हुए आते हैं, और कैसे रमनिक उनको प्रोटेक्ट करता है, कैसे रमनिक उनको घर में जगह देता है, पीने को पानी देता है, सोने को जगह देता है। तो ये सब हमें दिखाता है कि क्योंकि दक्षा ने ऑलरेडी अपने चाइल्डहुड में, अपनी जर्नी में पार्टीशन की इम्प्लीकेशंस को देखा है, तो वो इस चीज को फेवर नहीं करती है, वो डरती है, स्मिता को रूम में भेज देते हैं। लेकिन स्मिता अल्टीमेटली बॉबी एंड जावेद की फ्रेंड ही मिलती है, बिकॉज जावेद की सिस्टर तस्नीम एंड स्मिता देवर क्लासमेट्स। सो कॉरस बीच में इंटरवीन करता रहता है। लास्ट में हमारी फेथ को चैलेंज कर दिया जाता है जब बॉबी कृष्णा का आइडल इनके टेंपल में से उठा लेता है और फाइनल सॉल्यूशन देने को प्रूव करता है कि मैंने इन्हें कंटेमिनेट नहीं किया, या फिर कुछ भी बड़ा सा नहीं हुआ, ये तो रूटीन ही है। अगर मैंने इनको अपने आर्म में लिया है तो मैंने इनको एक्सेप्ट किया है, इन्होंने मेरी फेथ को एक्सेप्ट किया है, इन्होंने माना है कि मैं भी एक ह्यूमन हूं और अरुणा भी एक ह्यूमन है जो मुझे प्रे करती है। तो ह्यूमैनिटेरियन सॉल्यूशन देने की कोशिश यहाँ पर की गई है, बट फाइनल सॉल्यूशन हमेशा एक क्वेश्चन मार्क की तरह ही रहेगा, इनसॉल्यूबल रहेगा। मेजर थीम है कम्युनल वायलेंस, एपरेंट इनसॉल्युबिलिटी ऑफ सिचुएशन। 75 years बाद we are not able to give the apparent solution to the problem. Humanitarianism हम मेंटल पीस पार्टीशन से अब तक नहीं कर पाए हैं। बहुत ही इजी प्ले है, 3 एक्ट्स का है, टेक्स्ट जरूर से जरूर पढ़कर जाना है। विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई विल सून अपलोड मेनी मोर वीडियोस because HPSC playlist has just started. Thank you. Have a nice day. Keep preparing well.